میں نے توہین سے اپنا منہ نہیں چھپایا۔ میں جانتا ہوں کہ میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 50واں باب، 4 سے 7 آیات مقدسہ۔ مالک خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان عطا کی تاکہ میں تھکے ماندوں کے لیے وقت پر کلام کر سکوں۔ وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی مانند سنوں۔ مالک خداوند ہی نے میرا کان کھولا ہے تو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا۔ میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں کو اور گالیں نوچنے والوں کو دے دیں۔ میں نے توہین اور تھوک سے اپنا منہ نہیں چھپایا، لیکن مالک خداوند میرا مددگار ہے، اسی لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ اسی لیے میں نے اپنا چہرہ چکماک کی طرح کیا اور یہ جانا کہ میں رسوا نہ ہوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 22 جماعتی جواب۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ سب مجھے دیکھتے اور مجھ پر ہنستے ہیں، وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلاتے ہیں۔ اس کا توکل خداوند پر ہے، وہ اسے بچائے۔ جبکہ وہ اسے پیار کرتا تو وہ اسے چھڑائے۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ بہت سے کتے مجھے گھیرے ہوئے ہیں، بدکاروں کا گروہ میری چاروں طرف ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ، میرے پاؤں چھیڑ ڈالے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر کوڑا ڈالتے ہیں، مگر تو اے خداوند دور نہ رہا۔ اے میرے مددگار، میری کمک کے لیے جلد آ۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ میں اپنے بھائیوں میں تیرا نام مشہور کروں گا، جماعت کے درمیان تیری حمد کروں گا۔ اے تم جو خداوند سے ڈرتے اور اس کی حمد کرو، اے یعقوب کی نسل اس کی تمجید کرو، اے اسرائیل کی اولاد اس کی تعظیم کرو۔ جماعتی جواب۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو فروتن کر دیا، لیکن خدا نے اسے نہایت بلند کیا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 2 باب 6 تا 11 آیت مقدسہ۔ یسوع مسیح نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 14واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 15ویں باب کی 47ویں آیت تک۔ 2 دن کے بعد فسح اور عید فطیر ہونے والی تھی، اور سردار کاہن اور فقی تدبیر کر رہے تھے کہ یسوع کو کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں، مگر کہتے تھے کہ عید کے دن نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں فساد برپا ہو۔ اور جب وہ بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا اور کھانا کھانے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطر دان میں جٹاماسی کا بیش بہا خالص عطر لائی اور عطر دان کو توڑ کر اس کے سر پر ڈالا، مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے کہ یہ عطر کیوں ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک سکتا
और गरीबों को दिया जा सकता था, और वो उससे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे देख क्यों करते हो? उसने मुझसे भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास हैं। तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूंगा। जो कुछ उससे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही मेरे बदन को दफन के लिए इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस इंजील की मुनादी की जाएगी, यह भी जो उसने किया है उसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। और यहूदा इस्करियोती जो 12 शागिर्दों में से था, सरदार काहिनों के पास गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगा, और ईद फतीर के पहले दिन जब फसा ज़बह किया जाता था, यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ, और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाना खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूं? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है, इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, मगर उस आदमी पर अफसोस जो इब्ने इंसान को पकड़वाता है। उसके लिए बेहतर यह होता कि वो आदमी पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं ताग के शीरे में से फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। तब वो हम्द गाकर कोहे जैतून को गए, और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। तब पतरस ने उससे कहा, अगरचे सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात मुर्ग के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने और भी जोश से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार न करूंगा। और सब ने ऐसा ही कहा। फिर वो एक मकाम में आए जिसका नाम जित्समनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं।
और पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दहशत ज़दा और रंजीदा होने लगा, और उसने उनसे कहा, मेरी जान बहुत मौत गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरा और दुआ की। अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, अब्बा, ऐ बाप, सब कुछ तुझसे मुमकिन है, इस प्याले को मुझसे हटा ले, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, है शमौन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी जाग ना सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर चला गया और वही कहकर दुआ की, और वापस आकर उन्हें फिर सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं, और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, इब्न इंसान गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मुझे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा इस्करियोती आ पहुंचा। वो 12 शागिर्दों में से एक था। सरदार काहिनों, फकीयों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके साथ था, और पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिलफोर उसके पास गया और कहा, रब्बी, और मुकर्ररन चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने खिताब करके उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लिए हुए मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं तो हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये नविश्तों के पूरे होने के लिए है। इस पर सब उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक नौजवान जो बदन पर फक्त कतानी चादर ओढ़े था उसके पीछे पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यीशु को काहिन आजम के पास ले गए। सब सरदार काहिन, फकी और बुजुर्ग उसके यहाँ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आजम के सहन के अंदर तक गया और खादमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार काहिन बमा तमाम अदालत आलिया समेत यीशु के खिलाफ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाई, क्योंकि अक्सरों ने उस पर झूठी गवाही तो दी, मगर उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थीं। फिर बाज ने उठकर झूठी गवाही देकर कहा, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से बनी ना हो। और इसमें भी उनकी गवाही मुत्तफिक ना थी। तब काहिन आजम ने बीच में खड़े होकर यूं कहते हुए यीशु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता? ये तुझ पर क्या इल्जाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और जवाब ना दिया। फिर काहिन आजम उससे पूछने लगा और उसने कहा, क्या तू अल मसीह है, इब्ने अल मुबारक? यीशु ने कहा, मैं हूं। तुम इब्ने इंसान को अल कादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता देखोगे।
इस पर काहिन आजम ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत? देखो, तुमने ये कुफ्र सुना है, तुम्हारी क्या राय है? वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकने, उसका मुंह ढांपने, उसे मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत कर। और खादिम उसे तमांचे मार कर ले गए। और जब पतरस नीचे सहन में था तो काहिन आजम की लोंडियों में से एक आई और पतरस को आग तापता देखकर उस पर निगाह करके बोली, तू भी यीशु नासरी के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो न जानता और न समझता हूं कि तू क्या कहती है। और वो बाहर दहलीज में गया और मुर्ग ने बांग दी। फिर वो लोंडी जिसने उसे देखा था पास खड़े होने वालों से दोबारा कहने लगी, ये उन्हीं में से है। उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाले पतरस से फिर कहने लगे, यकीनन तू उन्हीं में से है, क्योंकि तू भी जलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा, मैं उस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिल फोर मुर्ग ने दोबारा बांग दी। तब पतरस को वो बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी कि मुर्ग के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। बस उस पर वो रोने लग गया। जो ही सुबह हुई, सरदार काहिनों ने बुजुर्गों, फकीयों और सारी अदालत आलिया के साथ मशवरा करके यीशु को बांधा और ले जाकर पिलातूस के हवाले किया। और पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद ही कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत सी बातों का इल्जाम लगाते रहे। तब पिलातूस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? देख, वो तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन यीशु ने फिर कोई जवाब ना दिया, यहाँ तक कि पिलातूस ने ताजुब किया। पिलातूस ईद के मौका पर लोगों की खातिर एक कैदी को छोड़ दिया करता था जिसके लिए वो अर्ज किया करते थे। और बराबा नाम एक शख्स उन बागियों के साथ मुकीद था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और जब अवाम पिलातूस के पास आकर अर्ज करने लगे कि वो कर जो हमेशा हमारे लिए करता है, तो उसने उनसे जवाब में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि सरदार काहिनों ने हसद से उसको मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने अवाम को उभारा कि वो उनके लिए बराबा ही को छोड़ दे। और पिलातूस ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उसे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए, उसे सलीब दे। मगर पिलातूस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? तब वो और भी चिल्लाए, उसे सलीब दे। तब पिलातूस ने अवाम को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया कि मसलूब किया जाए। सिपाहियों ने उसे किले के सहन में ले जाकर सारे दस्ते को इकट्ठा किया और उन्होंने उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे, ए यहूदियों के बादशाह सलाम। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते, उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उससे ठट्ठा कर चुके तो अर्गवानी पोशाक उस पर से उतारी और उसके कपड़े उसे पहनाकर उसे सलीब देने को बाहर ले गए। और शमाउन नामी एक करवानी जो सिकंदर रूफस का बाप था उधर से गुजरा, तो उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा ताकि उसकी सलीब उठा ले और वो उसे जुलजत्ता मकाम में लाए, जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है। और मैं और मुर मिलाकर उसे दी, पर उसने ना ली। उन्होंने उसे मसलूब किया और कुरा डालकर कि हर एक क्या क्या ले, उसके कपड़े बांट लिए। और तीसरी घड़ी थी
جب انہوں نے اسے صلیب دی اور کتابہ پر اس کا الزام یہ لکھا تھا، یہودیوں کا بادشاہ، اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو، ایک کو اس کے دائیں اور ایک کو اس کے بائیں مصلوب کیا۔ یوں یہ نوشتہ پورا ہوا کہ وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اور جو پاس سے گزرتے تھے وہ سر ہلا ہلا کر اس پر کفر بکتے تھے اور کہتے تھے، واہ واہ، تو جو خدا کی ہیکل کو ڈھاتا اور 3 دن میں پھر بناتا ہے، اپنے آپ کو بچا اور صلیب پر سے اترا۔ اور اسی طرح سردار کاہن بھی ماں فقیوں کے آپس میں یوں کہہ کر ٹھٹا کرتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا بادشاہ المسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھیں اور ایمان لائیں۔ اور وہ بھی جو اس کے ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے اسے ملامت کرتے تھے۔ اور جب چھٹی گھڑی ہوئی تو 9ویں گھڑی تک سارے ملک میں تاریکی چھا گئی۔ اور 9ویں گھڑی یسوع اونچی آواز سے چلایا، ایلی ایلی لما شبکتانی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض یہ سن کر کہنے لگے، دیکھو وہ الیاس کو بلاتا ہے۔ اور ایک نے دوڑ کر اور اسفنج کو سرکے سے بھر کر اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے پینے کو دیا اور کہا، ٹھہرو، ہم دیکھیں شاید الیاس اسے اتارنے آئے۔ تب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا جب اس نے اسے یوں جان دیتے دیکھا تو کہا، یہ آدمی در حقیقت خدا کا بیٹا تھا۔ اور کئی عورتیں بھی دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مجدلی، چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں مریم اور سلومی تھی۔ جب یسوع جلیل میں تھا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھی۔ اور بہت سی اور بھی تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ اور جب شام ہوئی تو اس لیے کہ تہیہ یعنی سبت سے پہلے کا دن تھا، یوسف رامتی جو نامور مشیر اور خود خداوند کی بادشاہی کا منتظر تھا آیا اور جرأت سے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ اور پلاطوس نے تعجب کیا کہ وہ مر بھی گیا ہوا ہے، اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا، کیا وہ مر گیا ہوا ہے؟ اور جب صوبیدار سے یوں معلوم کیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ یوسف نے کتانی چادر مول لی اور یسوع کو اتار کر چادر میں کفنایا اور اسے ایک قبر میں رکھا جو چٹان میں کھودی گئی تھی، اور اس قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا۔ اور مریم مجدلی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ اسے کہاں رکھتے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔